Hello students, in this video we will be discussing some of the important numericals based on Newton's law of gravitation. The first question here says the gravitational force between two objects is F. How will this force change when the distance between them is reduced to half? Similar type of question we also discussed in our lecture video. F equals G m1 m2 by r square. Now here f dash is going to be g m1 m2 upon r by 2 square, which would mean g m1 m2 r square by 4. This 4 will come here. 4 times g m1 m2 by r square. This is f dash, and this g m1 m2 by r square is f. So f dash is equal to 4f. That is, you can write an answer statement that is force will become 4 times. Second part, the mass of each object is quadrupled. That is, m1 dash is equals to 4m1 and m2 dash is equal to 4m2. So f dash will become g into 4m1 into 4m2 by r square. इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया m1 डैश की जगह 4m1 और m2 डैश की जगह 4m2. f dash is equals to 4 times 4 is 16 into g m1 m2 by r square. That is f dash is equals to 16 और ये पूरा क्या है f force will become 16 times. Force 16 times हो जाएगा. Hope the solution is clear. Let's move to the next question. The question says a sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg. तो m1 दिया आपको 40 kg और m2 भी गिवन है आपको 15 kg and their centers are 20 centimeter apart. 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 20 by 100 या आप बोले 0.2 मीटर and with a force of 0.1 milligram. F given है 0.1 मिलीग्राम. 0.1 मिलीग्राम को जब मैं किलोग्राम में चेंज करूंगा तो मिली से 10 की पावर -3 एंड देन केजी के लिए फिर से 10 की पावर -3. सो दिस विल बिकम 0.1 into 10 to the power of 0.1 into 10 to the power of -6, and this was given kilogram weight, or you can write 10 raised to the power of -7 kg weight. अब kg weight को फोर्स में कन्वर्ट करना है न्यूटन में. kg weight को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप 9.8 से इंटू करेंगे. सो 9.8 into 10 to the power of -7 ये पूरा बन जाएगा. आप यहाँ नोट कर सकते हैं, नोट डाल लीजिए यहाँ. क्या नोट डाल लें कि 1 kg weight equals to 9.8 न्यूटन. ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अब इस सब को फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r square. So you have to calculate g will become F into r square upon m1 times m2
F is 9.8 into 10 to the power of -7 R is 0.2. 0.2 is 2 into 10 raised to the power of -1. So it's 2 into 10 raised to the power of -1 square upon 40 into second weight is 15. Let's us simplify. This will become 10 raised to the power of -2 and 10 raised to the power of -7. So the multiplier is going to be 10 raised to the power of -9, -9 and 9.8 into 2 by 40 into 15. इसको सिंप्लीफाई करें. So this will be 600. Denominator 600 होगा. 9 to the 8 to the 66. 19.6 into 10 raised to the power of -9 upon 600. ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 19.6 upon 6 into 10 raised to the power of -11. ये समझ में आया आपको. 600 को मैंने कंसिडर किया 6 into 100 और 100 यानी 10 की पावर 2 ऊपर गया 10 की पावर -2 बना. इसने इसको बना दिया 10 की पावर -11. यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया. 2 into 2 करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर था. स्क्वायर तो इसको और डबल करेंगे into 2 तो ये कैंसिल हुआ 3. Now 6 3s are 18 बचा 1 and 6 becomes 16. 6 3s are 18 1 and 6 becomes 16. 5 3s are 15. अगेन एक बचा 6.53 into 10 की पावर -11 और यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. देख लें इसको फिर से. यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी. 2 का स्क्वायर करना था तो 2 into 2 तो यहाँ 2 और इंटू कर दिया हमने लास्ट में. दिस इज 6.53 into 10 raised to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. Hope the solution is clear. Let's move to the next question. Question says the gravitational force between two objects is 100 Newton. How should these objects be changed so that the force become? How should the distance between these two objects change so that force becomes 50 Newton? तो अपन यहाँ शुरू कर सकते हैं. We know that F is inversely proportional to R square. क्योंकि मास और जी तो कांस्टेंट ही चलना है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर लेने पर F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. अब F1 गिवन है आपको 100 न्यूटन और F2 गिवन है आपको 50 न्यूटन. So 100 upon 50 is equal to R2 square upon R1 square. कैंसल किया, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो R2 by R1 is equal to √2 या फिर R2 is equals to √2 R1. So आंसर स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस must be made √2 times of initial distance. होप सॉल्यूशन क्लियर है. आसान सॉल्यूशन है, रेशियो से सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two electrons, each of mass 9.1 into 10 raised to the power of -31 kg, are at a distance of 1 angstrom. Calculate the gravitational force of attraction between them.
गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। आप लिख सकते हो वी नो दैट F is equal to G m1 times m2 upon r square. Here m1 is equals to 9.1 into 10 की पावर -31 kg और यही बराबर है m2 के भी। R है 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 into 10 की पावर -10 और फिर बोल रहा है कि फोर्स निकालिए। G की वैल्यू मुझे मालूम है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। चलिए शुरू करता हूं मैं वैल्यू पुट करना। F equals to 6.67 into 10 raised to the power of -11 into 9.1 into 10 to the power of -31 into again 9.1 into 10 to the power of -31 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया था 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दिया है 10 की पावर -10 और इसका भी स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले मल्टीप्लायर्स को एक तरफ ले जाता हूं मैं 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 और -31 और -31 तो ये -62 -62 -63 -73 -73 upon 10 to the power of -20. So this becomes 10 to the power of -53. अब 9.1 into 9.1 91 का स्क्वायर होगा 82.81 और इसको इंटू करना है 6.67 से तो 7 19 1 carry 56 और 1 57 again 6 8 6 9 4 एक और बार यही चीज दोबारा लिख देते हैं। कैलकुलेट करने पर 7 2 4 3 2 5 5 और डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 प्लेस के बाद 552.3427 जिसको आप लिख सकते हैं 5.52 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -51 और यूनिट लगाना ना भूलें, फोर्स है इसलिए यूनिट न्यूटन। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies A and B of masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by a distance of 2 meter. बढ़िया क्वेश्चन। एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक का मास 2 kg, दूसरे का मास 4 kg और दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर। अब बोल रहा है where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to A and B is 0। मतलब ये कहाँ रखूं मैं, यहाँ पर कहीं रखूं 1 kg इस तरह से कि ये बॉडी जो A पर रखी है वो इसे अपनी तरफ खींचेगी इधर, ये बॉडी जो B पे रखी है वो ऐसे अपनी तरफ खींचेगी, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए। तो ठीक है, इसके लिए मैं मान लेता हूं कि A से X की दूरी पर रखा तो ऑटोमेटिकली इस साइड से वो दूरी 2 - x हो जाएगी। अब FA बराबर FB लगा दीजिए, G इंटू 2 इंटू 1 बाय x स्क्वायर
बराबर होगा g इंटू 2 इंटू 4/2 - x² के। ठीक है, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ रूट कर लेते हैं, तो 1/x बराबर 2/2 - x। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट करने पर आपको ऐसा मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 - x इज इक्वल्स टू 2x, 2 - x इज इक्वल्स टू, यहाँ डिस्टेंस ये वाला 1 था, 1 kg, तो यहाँ 2 आना चाहिए था और ये √2 बनेगा। ये आप चेक करेक्शन कर लीजिएगा, 4 × 1 करना चाहिए था मुझे, 4 × 1, तो 2 - x इज इक्वल्स टू √2x, 2 इज इक्वल्स टू √2x प्लस x, √2 होता है 1.41 प्लस 1 इंटू x, ये 2 के बराबर, तो 2/2.41 इज इक्वल टू x। सॉल्व करें इसको तो आपको मिलेगा 0.82 मीटर, x इज इक्वल्स टू 0.82 मीटर। होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, if the distance between two masses is increased by a factor of 4, मतलब r dash is equals to 4r कर दिया, by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? तो किसी m1 डैश को मैं कितना चेंज करूं कि दोनों फोर्स बराबर आ जाए? तो पहले वाला फोर्स है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, और F डैश है जी m1 डैश इंटू m2 बाय 4r का स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमने किया जी m1 डैश इंटू m2 अपॉन 4r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, m2 से m2 और g से g कैंसल, m1 डैश अपॉन 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, m1 डैश इज इक्वल्स टू 16m1, यानी कि द मास ऑफ one of them should be made 16 times. Hope the solution is clear to you. सारे ही न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड थे, F इज इक्वल्स टू G1, F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर। अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा गया और आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Keep watching, keep learning. Thank you so much.